Hello children, hope you are doing good. Today I am going to continue the lesson, that is major landforms of the earth. In a previous lesson, we discussed about why landforms formed. There are two main reasons for landforms, that is main two process, that is internal process and another is external process. In internal process, there is an upliftment and sinking. And external process, there is erosion and deposition. Erosion means that's wearing down a earth surface is called erosion, and deposition is that the weared over portion is deposit or rebuilt is called deposition. And on the basis of elevation and slope, the lands are categorized in three steps, three landforms. There are three types of landforms mainly, that is mountains, plateaus and plains. Mountains. What is mountain? Any surface, any natural elevation of the earth surface is called a mountain. Mountain is three types, that is fold mountain, block mountain and volcanic mountain. Again, fold mountain is two types. One is old fold mountain and another is new fold mountain. Examples of fold mountain is Himalaya mountain and Aravalli range. And block mountain, when area is separated in two blocks, the block mountains are formed. That is block mountain. The area which is lifted up is called a horst, and the area, the portion which is go down is called graben. Rhine Valley and Osh mountain is the main examples of the block mountains. And another is volcanic mountain. Volcanic mountain formed due to the volcanic activities. The Kilimanjaro and Fusiyama is the good example for the volcanic mountain. And range, mountain range. When the mountain is arranged in a line is known as range. When the range is arranged in a parallel way, that is called a mountain system, isn't it? Now next topic is plateau. This is one of the major landform. What are plateaus? Plateaus is an elevated flat land. It is a flat top tableland standing above the surrounding areas. That is, mountain also is a elevated land, but mountain is not flat land. Mountain has a small summit. This is mountain, but plateau is an elevated flat top tableland. Flat surface से उठा है, but it's elevated. The landforms are categorized on the basis of elevation and slope. I already explained in the previous class. The landforms are categorized on the basis of elevation and the slope. The plateau is an elevated flat land, but it's standing up above the surrounding area. Okay. The height of the plateau is maybe 100 meter और several thousand meters also. जो plateau जो है 100 meters में भी रहते हैं और above 1000 meters में भी रहते हैं. And the side of the plateau, the sides है हम steep slopes. Maximum इसका slope जो है steep रहते हैं. जो हम लोग previous class में पढ़े थे, steep माने जो vertical stay जैसा रहेगा जिसमें very difficult to climb in the elevation area. और जो ये जो plateaus को जो maximum plateau जो है steep slope रहते हैं. And age of the mountain, as it we studied that two type, one is old mountain and new mountain. जैसे कि mountain के जैसे old mountain, new mountain होते हैं, उसी तरह plateaus भी old plateaus and new plateaus होते हैं. Examples of old plateau is Deccan Plateau, that is in India. Deccan Plateau is one of the old plateau. The East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda, and Western Plateau are the examples of the old plateau. And which is the highest plateau in the world? The highest plateau is the Tibet Plateau. The Tibet Plateau is located in the Tibetan area. Its height is 4000 to 6000 height, mean above sea level. 4000 to 6000. इसका जो height है varies है, एक जैसा नहीं है.
कुछ जगह में मे बी 4000 हाइट होंगे, कुछ जगह में जो 6000 हाइट है, यानी सी मीन लेवल. व्हाट इज मीन बाय सी मीन लेवल? सी मीन जो सी वाटर है उसका एक लिमिटेड एरिया है, वो उससे वो एक्सीड नहीं होएगा. उससे जो एक्सीड होता है उसको हम लोग सी मीन लेवल बोलते हैं. जो सी मीन लेवल से जो है टिबेट प्लेटू जो है 4000 to 6000 हाइट मीटर हाइट है. एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लेटू? The plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. Therefore, many of the mining areas in the world are located in the plateau area. जो मिनरल्स जो है, बहुत सारे मिनरल जो प्लेटू एरिया में पाए जाते हैं, उसमें जो अफ्रीकन प्लेटू है उसमें जो है गोल्ड और डायमंड पाए जाते हैं. एंड द छोटा नागपुर प्लेटू विच इज सिचुएटेड इन आवर इंडिया इज फेमस फॉर अ कोल, iron and magnesium. The Chota Nagpur plateau in India is a huge reserves of iron, coal and magnesium. The lava plateau are rich in black soil. जो lava plateau जो है वो लावा से जो है वैल्केनिक एक्टिविटी से जो प्लेटू फॉर्म हुए हैं वहाँ का जो सॉइल है बहुत ब्लैक कलर के रहते हैं. वो जो सॉइल जो है फर्टाइल के लिए, कल्टिवेशन के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं. ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन एंड फार्मिंग. And another uses of plateau is a waterfall. Many waterfalls form in the plateau area. plateau जो है बहुत हाइट में रहते हैं. जब वो रिवर वहाँ से क्रॉस करती है वो क्या बन जाती है? वाटरफॉल बन जाती है ना. और वाटरफॉल जो है बहुत हाइट से फ्लो होते हैं, गिरते हैं. इसीलिए जो है प्लेटूस एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं. Many waterfalls form in the plateau area. several waterfall वहाँ से फ्लो होते हैं. वाई? बिकॉज एज रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेटू फॉल्स फ्रॉम द हाइट एरिया. प्लेटू जो है बहुत हाइट रहते हैं, जब रिवर्स वहाँ से क्रॉस होती है तो क्या बन जाते हैं? वाटरफॉल्स बन जाते हैं ना. तो इंडिया में एक फेमस वाटरफॉल है खुंड्रू वाटरफॉल, जो है छोटा नागपुर प्लेटू में पाए जाते हैं. जबकि वो सुबर्ण रेखा जो रिवर्स उसमें फ्लो करती है तो वहाँ पे खुंड्रू वाटरफॉल्स फॉर्म आते हैं. खुंड्रू वाटरफॉल जो है छोटा नागपुर का प्लेटूस में वो फॉर्म होते हैं. अनदर फेमस वाटरफॉल इज जोग फॉल. जोग फॉल जो है कर्नाटका में पाए जाते हैं. वो जो है शरावती रिवर्स में ये जोग फॉल जो है फॉर्म होते हैं. मेनी प्लेटूज हैव अ सीनिक स्पॉट एंड ऑफ ए ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट. जब वाटरफॉल रहते हैं और बहुत सारा अच्छा सीनिक रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यू पाए जाते हैं जो प्लेटू में, तो ऑब्वियसली क्या होएगा? बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे. जब टूरिस्ट आएंगे तो क्या होगा? वहाँ का जो इकोनॉमिक लेवल जो है वो बढ़ेंगे. जो है प्लेटू इज़ अ वेरी गुड फॉर टूरिज्म स्पॉट और वेरी गुड सीनरी लैंडस्केप. जो उसका जो लैंडस्केप है बहुत सुंदर है. दिस इज द यूजेस ऑफ प्लेटू. ओके, अनदर टॉपिक इज प्लेन. अनदर मेजर लैंडफॉर्म इज प्लेन. द प्लेन, व्हाट इज प्लेन? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ अ फ्लैट लैंड. जो बहुत लंबा फ्लैट लैंड है उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं. मैंने पहले ही बताया व्हाट इज मीन बाय मीन सी लेवल. जैसे कि ये सी वाटर है, ये हमारा सरफेस है. जो प्लेन जो है 200 मीटर में रहते हैं मीन सी लेवल, और जो प्लेटूज जो है 4002, जैसे कि हमने देखे टिबेट प्लेटू जो है 4000 मीटर हाइट है. और ये जो माउंटेन्स जो है उससे भी हाइट है. हाईएस्ट माउंटेन जो है मे बी 8000 से भी ऊपर हो सकते हैं ये माउंटेन. इस तरह जो है लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. दिस इज कॉल्ड, ये मीन सी लेवल है. हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि मौना किया जो है अंडर सी वाटर है, जो है पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है हवाई में, वो अंडर सी वाटर है. उसका जो हाइट क्या था? 10,205, यानी वो मीन सी लेवल से नीचे था. उसका जो हाइट था 10,205 मीटर. मौना किया जो है अंडर सी माउंटेन है. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग. कुछ प्लेन जो है बहुत प्लेन रहते हैं और कुछ प्लेन जो है स्लाइटली रोलिंग है और अंडुलेटिंग. अंडुलेटिंग मीन्स जैसे कि वेव्स जैसे कि वेव्स रहते हैं ना, इसको हम लोग अंडुलेटिंग बोलते हैं, अंडुलेटिंग प्लेन.
मोस्टली द प्लेन्स आर वेरी प्लेन, बहुत से ज़्यादा जो प्लेन जो है प्लेन ही रहते हैं, बट कुछ प्लेन जो है एंडुलेटिंग प्लेन्स होते हैं. देन ये प्लेन कैसे बनते हैं, हाउ द प्लेन्स आर फॉर्म्स. हाँ, द प्लेन्स आर फॉर्म मेनली इन द रिवर. प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज. हम लोग पहले देखे थे कि जो माउंटेन्स जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ में बहुत सारे रिवर्स बनते हैं, ओरिजिन होते हैं. उसी की तरह जो है ग्लेशियर से मेल्ट होके आते हैं माउंटेन से. जैसे कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स के थ्रू से जो है रिवर्स फ्लो होते हैं, बहुत सारे फ्लोज रिवर्स रहते हैं. जब ये माउंटेन से रिवर फ्लो होते हैं तो रिवर्स क्या करते हैं, माउंटेन से बहुत सारे हम लोग जो इरोडेड मटेरियल्स, इरोशन के थ्रू जो इरोडेड मटेरियल्स को अपने साथ कैरी करके लेके आते हैं. साथ साथ में बहुत सारे सैंड, सिल्ट, सॉइल सबको इरोड करके लेके आते हैं और रास्ते में जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे डिपॉजिट करके जाते हैं और जो लेवल एरिया में जो है उसको डिपॉजिट कर देते हैं. रिवर वैली में जो बैंक ऑफ रिवर है, रिवर वैली है, वहाँ पे वो अपना सॉइल, सैंड, सिल्ट ये सबको डिपॉजिट करते हैं. इसी तरह जो है प्लेन्स एरिया बनते हैं. जब ये यहाँ से फ्लो करके लेके आते हैं तो साथ में क्या करते हैं, बहुत सारा फर्टाइल, बहुत सारा खाद को लेके आते हैं. तो ये यहाँ अपने वैली में डिपॉजिट करते तो क्या बन जाता, जो सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल हो जाते हैं. तो जब सॉइल फर्टाइल हो जाएगा तो क्या होएगा, कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल होएगा. सो प्लेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर फर्टाइल. जैसे कि दे कैरी फॉरवर्ड एंड eroded materials then deposit in the entire valley and this makes a river valley. फिर उसके बाद जब जो है प्लेन्स बन जाते हैं. और what is the benefits of plains? Plains are, I already told that plains are very fertile. Construction of transport network is easy because of the flat surface. हम लोग जो प्लेन एरिया में घर बनाना, रोड बनाना बहुत इजी हो जाता है, रादर देन जब माउंटेन में जो है हम लोग घर बनाने के लिए और रेलवे रोड बनाने के लिए जब वहाँ मुश्किल हो जाता है. इसीलिए जो प्लेन एरिया में बिल्डिंग्स, घर सब बहुत सारे बन जाते हैं. तो प्लेन्स आर वेरी थिकली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है. प्लेन इज़ वेरी सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. हम लोग जो ईयरली सिविलाइज पीपल जो हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो पीपल जो हैं रिवर्स के वहीं पर जो सेटल हुए थे. वाई? क्योंकि वहाँ पे उनको रिवर्स का पानी मिल जाता था और फर्टाइल सॉइल रहता है, तो कल्टीवेशन के लिए उनको इजी हो जाता है. और अपने एरिया जो फ्लैट रहता है इसीलिए वहाँ पे घर बनाने के लिए उनको बहुत इजी हो जाता है. हम लोग देखे थे कि माउंटेन में जो क्लाइमेट जो है बहुत हार्श रहता है, इसलिए वहाँ में पीपल सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल है. इसीलिए जो लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरिया rather than प्लेन. प्लेन में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, बट माउंटेन एरिया में बहुत कम रहते हैं. बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेट है हम लोग देखें हैं कि बहुत ऊपर जब क्लाइम करते रहते हैं तो वहाँ में बहुत सारा कोल्ड एरिया है, वहाँ पे ग्लेशियर्स है, इसमें दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. Because of soil and the land is highly productive for in plain area, though that's why the people are settle, they prefer to settle in plain area. Okay, that's why the plain area is thickly populated region in plain area. अब जो thickly populated area plain area में जो है हम लोग एशिया जो है मेन है, एशिया में जो है प्लेन एरियाज बहुत है, जहाँ से वो गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स फ्लो होते हैं, वहाँ का जो रिवर वैली जो है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है. और जो है यांगचिक रिवर, जिसमें चाइना में जो यांगचिक रिवर है, वहाँ से भी बहुत सारा प्लेन एरिया, वहाँ में बहुत सारा पीपल सर्वाइव करते हैं. एंड लैंडफॉर्म एंड द पीपल. Humans have been living different kind of landforms in a different way. 3 types of landform हम लोग देखते थे, mountain, plateaus and plains. तीन एरिया में भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं और डिफरेंट उनका लाइफ स्टाइल भी है. लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन माउंटेन. हम लोग देखे थे माउंटेन में उसका जो इंसान का लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी माउंटेन बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से ग्लेशियर्स बनते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो पानी जो है वो ग्लेशियर से बनता है, वहाँ से बहुत सारे रिवर्स फॉर्म होते हैं. तो माउंटेन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. तो हम लोग माउंटेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए. और नॉट ओनली दैट, जो माउंटेन जो है हमारा
घर का जैसा रूफ जैसा काम आते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घर का रूफ जो है बहुत सारा गर्मी धूप से जो जैसा हम सेव करते हैं, उसी तरह हम लोग माउंटेन भी, जो इंडिया का जो एवरेस्ट माउंटेन है, बहुत सारा धूप और गर्मी, हैवी विंड सबसे हमें जैसे कि वो सेव करता है, जैसे गार्ड जैसा हमें प्रोटेक्ट करता है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर माउंटेन। और प्लेटू, उसमें जो बहुत सारा मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलप के लिए और इंसान के लिए भी बहुत मिनरल्स बहुत ज़रूर है। जैसे आयरन से हम लोग बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। और प्लेन्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज लाइफ। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन्स जो है हमें बहुत सारा सुविधा देते हैं, पर माउंटेन से भी हमें बहुत सारा चीज़ जो है पाए जाते हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ बिल्ट ए हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। हाँ, माउंटेन से हमें प्लेन में एरिया है जो है हम लोग घर बनाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए और फार्मिंग करने के लिए बहुत इजी है। बिकॉज माउंटेन जो है इसको स्लोप जो है स्टीप रहते हैं, हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू द स्टीप स्लोप हम लोग जो लो लैंड जो है हमें मिलते हैं लैंड में। और बट कंपेयर करने से माउंटेन से प्लेटू जो है ठीक है, अच्छा है, पर प्लेटू से जो प्लेन्स है उससे भी ह्यूमन के लिए अच्छा लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। एंड नेचुरल कैलामिटीज़ कॉज वाइडर स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस सच एज earthquakes, volcanic eruption, storms, फ्लड। नेचुरल कैलामिटीज़ को तो हम लोग रोक नहीं सकते, पर ये नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हमारे जो है ह्यूज लॉस हो जाते हैं, जैसे कि लाइफ, हमारा प्रॉपर्टीज़, लाइफ सभी जो है लॉस हो जाते हैं। बट नेचुरल कैलामिटी को तो हम लोग रोक नहीं सकते, बट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर आवर रिस्क। हमें पब्लिक्स में, हमने हमारे आसपास में क्रिएटिव अवेयरनेस द्वारा जो है हम लोग जो नेचुरल कैलामिटी से जो जान माल का नुकसान होते हम उसे रोक सकते हैं। लैंड यूसेज, क्वाइट ऑफन ह्यूमंस यूज लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। हम जो लैंड्स को कुछ वेस्टफुल मैनर्स में भी वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम फर्टाइल लैंड में घर बना देते हैं, जो कल्टीवेशन लैंड में घर बना देते हैं, जो बैरन लैंड जो ऐसे ही रह जाते हैं। जो हम लोग बैरन लैंड में घर बना के अगर फर्टाइल लैंड को हम लोग कल्टीवेशन करेंगे तो बेटर फार्मिंग मिलेगा। और वी थ्रो गार्बेजेस ऑन लैंड इन ऑन वाटर मेकिंग दम डर्टी एंड पोल्यूटिंग दम। और हम लोग दूसरा क्या काम करते हैं, जो एरियाज़ को जो पोल्यूटिंग करते हैं, जैसे कि गार्बेज को लैंड में थ्रो कर देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं और वो एरिया को हम लोग पोल्यूटेड कर देते हैं। वी शुड अवॉइड सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। जो गिफ्ट, ये जो लैंड जो है हमारा गिफ्ट है, किसका? नेचर का गिफ्ट है। इसे हमें प्रिजर्व करने के लिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए ये जो लैंड को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसको जो सही तरह से हम लोग लैंड को यूज़ करना चाहिए, वाटर को भी हमें यूज़ करना चाहिए। इसीलिए जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम रखे हैं, उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, दैट्स स्वच्छ भारत मिशन। उसमें कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी। हाँ, हेल्दी माइंड जो है हेल्दी बॉडी इसमें लिव करते हैं, बट हेल्दी बॉडी के लिए क्या चाहिए? क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लीन एयर। ये सबको हमें प्रोवाइड करने के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन जो प्रोग्राम जो है आयोजन किया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दिस इज द लेसन स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस briefly. First question is, what are the major landforms? The major landforms of the earth are mountains, plateaus and plains. What is the difference between a mountain and a plateau? Mountain, it is a naturally elevated surface of the earth. It is higher than the surrounding area. Mountains have peaks. Plateau, it is an elevated flat land. It is a flat top land, stands above the surrounding area. Plateaus are flattened highlands. Number C, what are the different types of mountains? The different types of mountains are fold mountain, block mountain and volcanic mountain. And D, how are mountains useful to man? Mountains useful to man in the following ways. Mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers. In the mountains,
Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. They have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, raisins, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. And next is, how are plains formed? Most of the plains are formed by river and their tributaries. The river flow down the slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded material, then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys. It is from this deposit that plains are formed. Why are the river plains thickly populated? The river plains thickly populated as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. G. Why are mountains thinly populated? The mountains are thinly populated because of the harsh climate. Also, the slope are steep, less land is available for farming. And next is, tick the correct answer. The mountains differ from the hills in the terms of elevation, slope, aspects. The answer is elevation. Glaciers are found in mountains, the plains, the plateau. The answer is the mountain. Glaciers are found in the mountain. The Deccan Plateau is located in Kenya, Australia and India. The answer is India. The Deccan Plateau is located in India. The river Yangtze flows in South America, Australia, China. The river Yangtze flows in China. An important mountains range of Europe is the Andes, Alps, the Rockies. The answer is Alps. And next is fill in the blanks. A dash is an unbroken flat or a low level land. A plain is an unbroken flat or a low level land. The Himalayas and the Alps are example of dash type of mountains. The answer is fold mountain. These dash areas are rich in mineral deposits. Plateaus area are rich in mineral deposits. The dash is a line of mountains. The range is a line of mountains. The dash are most protective for farming. The plains are more protective for farming. And next is map skill. On an outline map of the world, mark the following: mountain ranges, Himalayas, Rockies, Andes, plateau, that is debate. Thank you, students.